Hello everyone, welcome to our channel, The Cracker. So I am Sumant, and here in this particular session we are going to continue this particular session. Like we have already completed the previous five five sessions we have already completed for the module A of retail banking, right? And in that particular in the previous sessions we have already covered all the chapters, and whenever it's required to cover some important concepts I have already covered that also. Okay, so before proceeding further, I would like to request all of you watch all the sessions. If you have less time, then watch in two crush session, मतलब two speed में देखिए, ठीक है? And in this particular session, this will be the last session for module A, and tomorrow will be the Sunday. So I will try to complete the module B, right? So planning ये है मेरा कि I will cover all the modules, ठीक है? So before your exam date, that means 25th. So let's see. अभी तो फुल सेटअप है, रेडी हो गया है, ठीक है? और ये एक न्यू है कि हम और भी कुछ धीरे धीरे ऐड ऑन हो रहा है, ठीक है? सो होपफुली आप लोगों के कोऑपरेशन एंड सपोर्ट के साथ हम इसको भी खत्म कर लेंगे, ठीक है? सो चलिए, लेट मी शो यू द कंसेप्ट। एंड आज हो गया आपका सैटरडे, अभी तो आपका वीकेंड स्टार्ट हुआ है। सो इस वीक बिंदासली लग जाइए, ठीक है? और कुछ नहीं, एक वीक का बात है, एग्जाम खत्म हो जाएगा, देन यू कैन ऑल चिल, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। लेट मी शो यू द कंटेंट फर्स्ट। ओके, so here you can see, so this is the question number 7 that we have already covered in the previous session, ठीक है? So you will get the link of the retail banking playlist in the about section, or else I will also put it in the description box. So before proceeding further, whenever you are trying to answer any questions, just try to analyze the questions and simultaneously you can answer the questions. Later on you can match the answer, ठीक है? So okay, so here in this particular session we will discuss something 14 questions, 14 to 15 questions, and with this we'll end the module A. So this is the question number 71. So you can check it and also try to answer this first. और आप लोगों को हमारा सेशन कैसे लग रहा है, एंड धीरे धीरे हम भी अपग्रेड कर रहे हैं, हाउ इट्स यू कैन ऑल्सो सजेस्ट योर फीडबैक एंड सजेशंस एज वेल, ठीक है? सो धीरे धीरे करके हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे, और होपफुली ये वाला जर्नी में आप लोग भी हमारा साथ ही रहेंगे, ठीक है? चलिए ये वाला क्वेश्चन का हम देखते हैं पहले क्या है। व्हाट आर द जेनेरिक ऑन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन बैंक्स? जो जेनेरिक ऑन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या क्या है इन द बैंक? सो जेनेरिक मतलब क्या है, हमारा अगर प्रीवियस सेशन देखे होंगे देन आप इजीली इसको आंसर कर सकें। जेनेरिक का आपका ये हो गया कोर, दैट मीन्स कोर ऑन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या है इन बैंक्स? सेविंग बैंक अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स, करंट अकाउंट, डिमांड लोन, टर्म लोन, गारंटीज, लेटर ऑफ क्रेडिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स, इशू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। दैट मीन्स कोर डिपॉजिट प्रोडक्ट क्या क्या है यहाँ पर आपका? ऑल आर कोर डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, ठीक है? So that means core deposit में all are core products for the bank, ठीक है? So ये रहा आपका all of the above, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेविंग, टर्म, करेंट आपका रहेगा कौन सा पहला पार्ट, दैट इज लायबिलिटी पार्ट, और डिमांड ये जो लोन है गारंटी, डिमांड टर्म लोन वगैरह ये आपका रहेगा एसेट पार्ट, ठीक है? और ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, गारंटी हो गया, ये आपका नॉन फंड बेस्ड रहेगा, ठीक है? सो रिकरिंग डिपॉजिट इशूइंग आपका प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट रहेगा, रिकरिंग डिपॉजिट आपका टर्म डिपॉजिट रहेगा, ठीक है? सो ये आपका इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज ओवर। सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 72. In product management, the expected product or service has the incorporation features like which one? ठीक है? So these are options. First option is, here you can see, so first option is customer expectation. So in product management, the expected product or service has the incorporation features. So जो expected product रहता है या जो services है उसके साथ कौन सा वाला फीचर रहता है, ठीक है? So customer expectation, incorporation features जो by default add-on रहता है, customer expectations, bankers expectations, customer banker expectations, competitors, product and banker strategies.
सो जो भी हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट करते हैं उसमें हम प्रोडक्ट को कैसे मैनेज, मतलब जो भी हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्या रहता है, दैट इज कस्टमर का क्या एक्सपेक्टेशन रहता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वी प्रोसीड फर्दर, ठीक है। सो इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा आपका कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73, व्हेन एनी वॉलंटरी improvements are made by banks in their products in order to market them, what is this called? So जब भी बैंक वॉलंटरीली इम्प्रूवमेंट करेगा, देखिए ये वाला प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट का टाइप्स डिस्क्राइब किया था, वहां पर आपको एक्सप्लेन हुआ था, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 IV में होगा, जिसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट को भी डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनी वॉलंटरी इम्प्रूवमेंट आर मेड बाय द बैंक्स इन द प्रोडक्ट, मतलब जो बैंक है वो वॉलंटरीली इम्प्रूवमेंट किए, उसका कुछ प्लानिंग नहीं था या कस्टमर का फीडबैक नहीं लिया गया है, वॉलंटरीली उनको लगा कि ये कर देना है, वो इमीडिएटली सडनली ये वाला स्टेप लिया गया है। तो ये वाला प्रोडक्ट को क्या कहा जाएगा, इन ऑर्डर टू मार्केट देम, उसको मार्केट करने के लिए पोटेंशियल प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, जेनरिक प्रोडक्ट। सो जिसमें हम वॉलंटरीली इंप्रूवमेंट करते हैं, कुछ प्लानिंग नहीं था पहले, हमें पता भी नहीं था कि हम ये करने वाले हैं, पर उसको मार्केट करने के लिए जरूरी था, सो हम उसको इमीडिएटली माइंड, हमें देखा कि उसका नीड है, उसको हम कर लिए। सो ये वाला जो है कीवर्ड है वॉलंटरी इंप्रूवमेंट, सो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंट मतलब हियर द बैंक इज ट्राइंग टू ऑगमेंट द प्रोडक्ट, वी कैन से एनरिच द प्रोडक्ट, ठीक है। इस पे आपका कॉम्प्लीमेंटरी कुछ आगे भी हो सकता है, पर उसका कुछ प्लानिंग पहले नहीं था, वॉलंटरीली उनको लगा कि ये हो जाना चाहिए, सो दे हैव डन दिस। सो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट देखिए, so here हमारा next question, here you can see everything that might, one second, so everything that might be done to attract or hold the customer, this is the keyword, attract and hold the customers under the product development, it is called as, ठीक है। सो ऑप्शंस आर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, जेनरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट। सो ये जो प्रोडक्ट का जो टाइप्स है, इसको हमने और एक सेशन में प्रीवियसली 4 या 5 सेशन देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, वहाँ पर अच्छे से एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन बताया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो की वर्ड है कि जो प्रोडक्ट हमारा यूज होता है दैट इज टू अट्रैक्ट एंड होल्ड द कस्टमर। होल्ड द कस्टमर मतलब जब भी कोई देख लेगा तो हाँ ये वाला प्रोडक्ट उसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब आई कैचिंग रहता है, ठीक है। और एक बात, होल्ड द कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर को हम जाने ही नहीं देंगे, उसको इतना फीचर ऐड कर देंगे कि हाँ वो बोलेगा कि हाँ मैं और कहीं पर स्किप नहीं करूंगा, ठीक है। सो वो वाला प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज पोटेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। सो पोटेंशियल आर द प्रोडक्ट्स जिसको हम यूज करते हैं टू अट्रैक्ट एंड द होल्ड द कस्टमर्स, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हम डाल सकते हैं, अट्रैक्ट के केस में क्या होता है, जैसे कि अभी कुछ कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर जो होते हैं ना, जब हम बड़े बड़े कस्टमर से डील करते हैं तो वो ये प्रीफर करते हैं कि उनका प्रीमाइस में ही बैंकिंग मिल सके, क्योंकि उनको आने जाने में नहीं, उनको सेल्फ सर्विस मिल सके। तो इसीलिए अभी बैंकिंग सर्विस क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी इसको अडॉप्ट कर चुके हैं, पब्लिक सेक्टर भी इसको अडॉप्ट किए हैं कुछ कुछ बड़े बड़े केसेस में, ठीक है। और अपकमिंग डेज में ये हमारा यूजुअली होने वाला है, दैट इज हम उनके प्रीमाइस में हमारा कुछ कंप्यूटर वगैरह को प्लेस करके वहाँ पर उनको जो होता है ना सेल्फ सर्विस प्रोवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। सो ये रहा हमारा एक है अट्रैक्टिव सर्विस, हम इसको बोल सकते हैं। और एक है हमारा जैसे कि यूज कर सकते हैं ना डोर सर्विस, तो ये भी एक सर्विस है कि सीनियर सिटीजन लोगों को अभी होल्ड करने के लिए, ठीक है। सो ये जो प्रोडक्ट है अट्रैक्ट एंड होल्ड द कस्टमर्स, दैट इज नोन एज पोटेंशियल प्रोडक्ट। one of the main tasks in product management, और ये जो प्रोडक्ट है ना इसका जो एग्जाम्पल है, क्या क्या इसमें इंक्लूड हो सकता है, उसको आप वो वाला सेशन देखिए, आपको फुल्ली क्लैरिटी आ जाएगा कि हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो वन ऑफ द मेन टास्क इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। सो जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट टास्क रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सो दैट इज नोन एज, हियर द ऑप्शंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट पॉलिसी, प्रोडक्ट इवोल्यूशन। सो इसका जो आंसर है, ट्राई करिए आंसर, वन ऑफ द मेन टास्क, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा दैट इज सो इसका जो रहेगा मेन है कि हमें उसके लिए जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए जो पॉलिसी बनाना है, सो दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट पॉलिसी, ठीक। व्हाट आर द
कॉन्सेप्ट्स इन प्रोडक्ट पॉलिसी। सो प्रोडक्ट पॉलिसी में कौन सा है, देखिए प्रोडक्ट पॉलिसी में कौन सा व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स आपका इंक्लूड होता है प्रोडक्ट पॉलिसी में, जो कि एक मेन फीचर है इन द प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सॉरी इन केस ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट के केस में, ठीक है। सो फर्स्ट है अप्रेजल और रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट और इंडिविजुअल प्रोडक्ट, डिसीजन ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड पोजिशनिंग, पैकेजिंग एंड ब्रांड डिसीजंस and new product development, both A and C, appraisal and review of the product, and C packaging and brand decisions। A and both A to C मतलब ये तीनों, ठीक है। decisions on the product, what are the concepts product policy में देखिए appraisal, review of the product and individual products। so product का क्या है फीचर्स, उसको रिव्यू करना, क्या मतलब जो हम प्लानिंग किए थे, जो इसका ब्लूप्रिंट बना था, कॉन्सेप्ट बना था, उसके अकॉर्डिंगली बनाया नहीं, उसको रिव्यू करना, उसको अप्रेज करना। सो ये भी आपका इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है डिसीजन ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग। सो उसका पोजीशनिंग कैसे करना है, कौन से मार्केट में उसको प्लेस करना है, कैसे उसको प्रमोट करना है, उसका भी जो है डिसीजन उसके अकॉर्डिंग ले लेना है। ये हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग कैसे आपका डिफरेंशिएट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भी, सो ये आपका भी इंक्लूड होता है, ठीक है, प्रोडक्ट पॉलिसी में कैसे में। पैकेजिंग एंड ब्रांड डिसीजन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो जो भी हम प्रोडक्ट बनाए उसका जो पैकेजिंग है, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन से, यू नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट वन, लाइक दैट। जो पैकेजिंग होता है वो रहता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है। सो हमारे बैंक के केस में पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग मतलब है हम जो सेविंग जो भी हमारा एक प्रोडक्ट ले ले लोन अकाउंट, ठीक है, लोन अकाउंट का जो फीचर्स रहता है उसको हम पैकेजिंग बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं कि जिसको हम पैक करके हम मार्केट में सेल करेंगे, तो यहाँ पर जो सर्विस है उसको भी हम पैकेज बोल सकते हैं। जो भी हम सर्विस देते हैं दैट कैन बी रिफ्लेक्टेड इन सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। सो पैकेजिंग, ब्रांड डिसीजन एंड उसके साथ जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक प्रोडक्ट हो गया, अगर मार्केट में हम देख रहे हैं, मार्केट एनालिसिस में हमें पता चल रहा है कि और कोई मार्केट में आया है हमारा कंपटीशन जो कि हमारा जो प्रोडक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर भी या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या न्यू प्रोडक्ट अपग्रेडेशन के ऊपर ध्यान दे देना चाहिए, ठीक है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट पॉलिसी। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, अप्रेजल ऑफ द प्रोडक्ट लाइन एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स इज एसेंशियल, ठीक है। सो जो भी आपका प्रोडक्ट लाइन है और जो भी आपका इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स है उसको अप्रेज करना, उसको रिव्यू करना वेरी एसेंशियल है। वेयर देयर इज चेंज इन कस्टमर्स ड्यास। सो ये जो जरूरी है कौन से केस में, ठीक है। सो यहाँ पर है चेंज इन कस्टमर्स ड्यास, ये ड्यास देख सकते हैं। एनवायरमेंट प्रेफरेंसेस, चेंज इन बैंक पॉलिसी ड्यू टू चेंज इन टॉप मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज, ऑल ऑफ द अबव। सो मेन इंपॉर्टेंटली कस्टमर, जब भी हम अप्रेज करेंगे रिव्यू करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर्स प्रेफरेंस, कस्टमर का जो है वहाँ पर एनवायरमेंट क्या है, उनका नीड क्या है, उनका मतलब चॉइस क्या है उसके अकॉर्डिंगली। सो मेन इंपॉर्टेंटली कस्टमर्स प्रेफरेंसेस। सो इसके हम बैंक का पॉलिसी टॉप मैनेजमेंट चेंज हो गया, ये तो आपका नहीं होता है प्रायोरिटीज का भी। कस्टमर्स प्रायोरिटीज के हिसाब से उनका मेन फर्स्ट जो रहता है दैट इज प्रेफरेंस, उनको क्या चाहिए, उनका जो चॉइस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए रहेगा मोर प्रेफरेबल। सो नेक्स्ट वन इज डिसीजन ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मीन्स। सो जो है डिसीजन ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मीन्स, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, डिफरेंशिएट मतलब जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर जो डिसीजन लेते हैं उसका मीनिंग क्या है। सो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट अलोंग विद द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, differentiating benefits and satisfaction to the customers, both A and B and none of them. Obviously, in case of product differentiation, we are comparing, if our product is A, we are comparing the product with B. अगर कोई हमारा टॉप कंपटीटर है, अगर बैंक के केस में पकड़े, जैसे कि हमारा एक बैंक है टॉप, अगर टॉप 3 में आता है, ठीक है, सो टॉप 2 में भी आता है, ठीक है। सो उस केस में हम 1 के साथ कंपेयर करेंगे और जो अदर बैंक से उनके साथ कंपेयर करेंगे उनका कैसे स्ट्रैटेजी। और अगर हम पब्लिक सेक्टर के बैंक की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक बीच में ये हो सकता है। तो नेक्स्ट हो सकता है हम प्राइवेट को भी देखेंगे कि प्राइवेट वाला जो होते हैं, हम एक एरिया में आपका 2 ब्रांच है, एक प्राइवेट है एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो वहां पर हम किसका हमारा कंपटीटर हो गया, प्राइवेट सेक्टर। तो वो क्या कर रहा है कि उसको पास कस्टमर जा रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे। सो वी हैव टू डू द थिंग्स, वी नीड टू make that differentiation gap less so that we can also acquire some better customer base in that particular place, ठीक है। सो यहाँ पर आपका है differentiating features of the product, so we'll also different the feature, हमारा feature का product क्या है along with the unique selling propositions, ठीक है। सेलिंग प्रोपोजिशंस के ऊपर भी हम ध्यान दे देंगे। सो इट्स आल्सो इंक्लूडेड इन केस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन द बेनिफिट्स एंड सैटिस्फैक्शन टू द कस्टमर, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को कैसे सैटिस्फाई कर रहा है उसको भी हम एनालिसिस कर लेंगे। सो इसमें जो आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, यूएसपी। यूएसपी मतलब
एक प्रोडक्ट का क्या स्पेशल ऐसा है कि आपके पास कस्टमर आएगा, उसका कुछ ना कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। जैसे हम एक लोन, हाउसिंग लोन है, उसका यूनिक स्पेशलिटी क्या होना चाहिए इन कंपेरिजन टू अदर, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ होता है ना। तो एक होता है हमारा आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको यूनिक स्पेसिफिकेशन प्रोपोजिशन हम बोल सकते हैं, यूएसपी है आपका। अगर हम अभी जैसे कि कुछ कुछ बैंक में हमारा जैसे कि 0.5, ठीक है, अभी बीओबी ने आपका 0.25 आपका कंसेशन 0.5 या 25 आपका कंसेशन दे रहा है इन केस ऑफ कार लोन। तो ऐसे ऐसे दूसरे बैंक भी दे रहे हैं। आपका जो अभी आएगा नेक्स्ट पूजो का सेशन, उस टाइम भी कुछ कुछ कंसेशन बैंक भी अभी डिस्काउंट जैसे दे रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रमोशन स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, क्योंकि सब डिस्काउंट के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। सो नाउ बैंक्स ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग द डिस्काउंट इन द आरओआई, एंड उसका भी एक पॉइंट है, अगर आपका सिविल ही अच्छा है उसके अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। So unique selling propositions is nothing but a dash value addition to the products, differentiation strategy of the products, higher income to the banker or vendor and edge over the customers, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, यूनिक स्पेशल सेलिंग प्रोपोजिशंस एक है वैल्यू जो कि व्हिच इज एडेड टू दैट प्रोडक्ट, ठीक है। सो वैल्यू एडिशन टू द प्रोडक्ट को हम अदरवाइज बोल सकते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। सो ये वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज प्रोडक्ट पोजिशनिंग। सो प्रोडक्ट पोजिशनिंग का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, पोजिशनिंग मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट को हम प्लेस करने का, कौन सा पर्टिकुलर प्लेस में उसको सेल करें, मतलब चॉइस ऑफ द सेलिंग प्लेस उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट उसका मीनिंग क्या है उसका ऑप्शन देख सकती है, ठीक है। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। पोजिशनिंग ऑफ प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पोजिशनिंग इज व्हाट यू डू टू द प्रोडक्ट, पोजिशनिंग एज द आर्ट ऑफ सिलेक्टिंग आउट ऑफ ए नंबर ऑफ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, पोजिशनिंग इज नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स माइंड, नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एग्जिस्टिंग कस्टमर, ठीक है। सो बोथ ए एंड बी। सो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट पोजिशनिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट इज व्हाट यू डू, ये वाला तो नहीं, ठीक है। मेन इंपोर्टेंटली यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर ये वाला देखिए ऑप्शन, पोजिशनिंग एज द आर्ट ऑफ सिलेक्टिंग आउट ऑफ नंबर ऑफ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस। सो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर हमने क्या देखे थे, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन वैल्यू एडिशन, ठीक है। सो इसके बाद हमारा उस जितने सारा वैल्यू एक प्रोडक्ट है, इसके लिए हमें पता है कि हमें 5 से वैल्यू एडिशन करना है, हमारे पास 10 ऑप्शन है, उसके उससे हमें आउट ऑफ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक लोन प्रोडक्ट के लिए हमारा सबसे बेस्ट पोजिशनिंग क्या होना चाहिए, बेस्ट यूएसपी हम क्या करेंगे जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। तो उसके लिए ये जो पोजिशनिंग करने से पहले हम अपने कंपटीटर को देखेंगे वो क्या कर रहा है जो कि हम कर सकते हैं, जिसमें हमारा लॉस भी नहीं हो सकता, वी कैन ऑल्सो गेन सम मोर कस्टमर्स। कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर का चॉइस ऑफ जो माइंड होता है ना वो क्या मैक्सिमम है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्या सिलेक्ट करेंगे, आरओआई। उसके और भी है, हम उसको मैक्सिमम टेन्योर भी दे सकते हैं, ठीक है, और उसको लोन अमाउंट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी है जिनको बहुत ज्यादा लोन चाहिए पर उनका जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। सिबिल में भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, पर सिबिल को अगर रिड्यूस कर देंगे तो फिर ये जो है हम कुछ ऐसे कस्टमर को दे देंगे जिनका सिविल जो है रिपोर्ट अच्छा नहीं है, देन जो है वो लोन डिफॉल्ट होने का हाई चांसेस हो सकता है। तो हम ऐसे को चूज करेंगे जो भी सेफ रहेगा और अट्रैक्टिव रहेगा। सो वेयर वी चूज आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम कंसेशन दे देते हैं कभी कभी, और भी बहुत सारा है इसमें, कुछ यूएसपी क्या होता है और एक प्रोसेसिंग चार्ज होता है, उसमें भी कभी कभी हम वेव कर देते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वी डू इट। सो यही वाला पॉइंट है, देखिए आर्ट ऑफ सिलेक्टिंग आउट ऑफ ए नंबर ऑफ यूनिक सेलिंग, यूएसपी बहुत सारे होगा, उसमें से जो आर्ट रहेगा हमारा सिलेक्शन का उसी को हम बोलेंगे प्रोडक्ट पोजीशनिंग, ठीक है। सो ये रहेगा आपका ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट है इन प्रोडक्ट पॉलिसी मार्केटिंग व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। सो इन प्रोडक्ट पॉलिसी मार्केटिंग, सो जब प्रोडक्ट पॉलिसी को मार्केटिंग हम करेंगे कौन सा वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग, पोजीशनिंग, डिफरेंशिएशन, रिव्यूज ऑफ मार्केट। सो जब हम प्रोडक्ट पॉलिसी को, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी पॉलिसी है उसको मार्केटिंग करेंगे, वहां पर मेन इंपोर्टेंटली क्या रहेगा, जब हम कोई भी
बैंक का प्रोडक्ट को करते हैं, ठीक है। सो कोई भी हम जैसे कि लोन हो या कोई भी सेविंग अकाउंट हो या लोन स्पेसिफिकली, बिकॉज वही तो हमारा मेन फोकस रहता है, कोई भी हमारा क्रेडिट हो, कोई भी हमारा एडवांस हो, ठीक है। जब हम उसको मार्केटिंग करते हैं, हमारा मेन क्या रहता है, ये इस बैंक का है, ठीक है, ये वाला लोन बीओबी का है, ये वाला लोन एसबीआई का है, ये वाला लोन आपका बैंक ऑफ इंडिया का है या कनाडा का है या पीएनबी का है, ठीक है। सो ऐसे ऐसे ही आपका बोला जाता है। सो जिस बैंक का ब्रांड इमेज अच्छा होगा मार्केट में, जिस बैंक का उस एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन होगा, मेन इंपोर्टेंटली ब्रांड इमेज उसी को भी रिफ्लेक्ट करता है। सो यहाँ पर जो है मेन इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट इज ब्रांडिंग, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। उस प्रोडक्ट का कैसा भी ब्रांड है वो भी मैटर करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट रहेगा, देखिए, ब्रांडिंग इज वेरी पावरफुल टूल इन मार्केटिंग, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर बैंक्स। सो जो ये ब्रांडिंग है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, ठीक है। सो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग। सो ऑप्शन फर्स्ट है रिलेशनशिप बिल्डिंग, कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग, एंड नेक्स्ट है क्रिएटिव पर्सपेक्टिव and customers creates prospective customers awareness, both A and B, all A to C, ठीक है। सो ये जो ब्रांडिंग है एक किसमें हेल्प करता है, जो है रिलेशन बिल्डिंग। ये ब्रांडिंग एक रिलेशन बिल्डिंग करता है। अगर कस्टमर का ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज हो गया इस ब्रांड के ऊपर, देन दे विल नेवर लीव दिस पर्टिकुलर बैंक, ठीक है। जो भी अपना जो फ्यूचर जो भी उनका और भी जरूरत पड़ेगा कुछ भी, तो इसी बैंक से लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सो और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देख देता हूँ। कुछ सीनियर सिटीजन है जिनको आप अच्छे से बात कर लो, वो और कहीं पे भी नहीं जाएंगे अपना अकाउंट खोलने के लिए या कोई भी डिपॉजिट देने के लिए, ठीक है। सो ऐसे ही मेन इंपोर्टेंटली हाउ वी आर गिविंग सर्विस, वही भी मैटर करता है। उससे हमारा एक रिलेशनशिप बिल्डिंग होता है, उसी से हमारा ब्रांड इमेज रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। सो कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग ये भी आपका इंक्लूडेड होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है क्रिएट्स प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स अवेयरनेस। सो इसके जो हमारे पर्सपेक्टिव, जो हमारा अच्छा कस्टमर है, जो हमें एक अच्छा हैविंग सम गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिनसे हमें मिल सकता है, उनके पास एक अवेयरनेस क्रिएट करता है कि हाँ ये वाला बैंक अच्छा है, ये वाला बैंक से हम जाते हैं तो हमें उतना इंपॉर्टेंस मिल जाता है, उतना हमारा सर्विस जल्दी से भी मिल जाता है, फास्ट सर्विस मिल जाता है। सो इट ऑल्सो क्रिएट सम अवेयरनेस अमंग द कस्टमर्स माइंड, ठीक है। सो ये रहेगा ऑल द ऑप्शंस। ब्रांडिंग आपका हेल्प करेगा इन ऑल द ऑप्शंस ए टू सी इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर ब्रांडिंग का आपका डेफिनेशन के साथ साथ आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किसके लिए हमें जरूरी है, वो भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। सो इन मार्केटिंग when catchy and attractive names for the products are accorded by the bank, then what is this called? सो जब मार्केटिंग के केस में जब हम प्रोडक्ट को मार्केटिंग करते हैं, कैची एंड अट्रैक्टिव मतलब कुछ ऐसे यूनिक नेम या जो कि आई कैचिंग टाइप का होगा, मतलब नाम देखते ही पता चला रही क्या है, लोगों को जानने के लिए जो है ना एक अंदर से उनको एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, इसको बोलते हैं ना आई कैचिंग। जब देख देते हैं अरे हाँ ये वाला प्रोडक्ट क्या है, ये है क्या एक्चुअली। जैसे मोबाइल का अभी बहुत ज्यादा मतलब पता है, एक छोटा सा मोबाइल होता है पर उसको ऐसे मतलब ऐसे डिजाइन करके ऐसे एनिमेटिंग करके हमें प्रोड्यूस किया जाता है हमारे सामने, हमें लगता है कि मोबाइल इज नथिंग, इट्स समथिंग मोर देन एनीथिंग, ठीक है। पर कम्युनिकेशन ओनली पर्पस है, सो भी हम भूल जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही आई कैचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो वो भी धीरे धीरे अभी बैंकिंग प्रोडक्ट में भी आने वाला है, अब देखने वाले हैं, ठीक है। सो आर्ट ऑफ सिलेक्शंस, ब्रांडिंग फॉर रिलेशनशिप बिल्डिंग। सो ये जो है आई कैचिंग, ब्रांडिंग फॉर रिलेशनशिप बिल्डिंग, एज ओवर कंपटीटर्स, कस्टमर प्रेफरेंस, ठीक है। सो मेन इंपॉर्टेंटली हम ये आई कैचिंग इसीलिए बनाएंगे कि ये जो है एक कस्टमर जब देखेगा तो फिर ये एक ब्रांड इमेज को रिफ्लेक्ट कर देगा, हाँ ये वाला प्रोडक्ट क्या है, कौन सा वाला है। सो एक हम इसको इम्प्लाइज कर सकते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड। सो दिस इज नोन एज, जब हम कैची एंड अट्रैक्टिव नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट आर अकॉर्डेड बाय द बैंक, तो उसको हम बोलेंगे ब्रांडिंग फॉर रिलेशनशिप बिल्डिंग। सो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। सो ब्रांडिंग का भी एक है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट को एक तरह बैंक का ब्रांड नेम, ठीक है। सो उसके साथ भी और एक रहेगा जब हम प्रोडक्ट को एक ब्रांड इमेज देंगे, सो लाइक उसको अच्छे से फीचर्स उसके साथ आयरन कर देंगे, तो जिसके साथ ये एक आई कैचिंग रहेगा, उसको हम बोलेंगे ब्रांडिंग फॉर रिलेशनशिप बिल्डिंग। सो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू join the telegram discussion group and you will get the link in the about section, and here we are also conducting the board quizzes, right? So maybe if we have the weekend tomorrow, so then we'll discuss some more and more quizzes tomorrow as well, ठीक है। सो आपका नेक्स्ट 1 वीक के अंदर हम मैक्सिमम क्विज भी वहां पर कंडक्ट कराएंगे, साथ ही यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, सो इसमें आपको ज्यादा से और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी आ रहा होगा, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सप्ताह में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।